We are here to discuss the fifth lecture on circular motion. So let's move. I would like to revise the points which I have written yesterday only. Few points we have written for the dynamics of uniform circular motion. By considering a body performing uniform circular motion, we know very well that if an object performs uniform circular motion, it means its speed will be constant in a circle of radius r. As body is in uniform circular motion, it has only centripetal acceleration. Whenever the body will be under the uniform circular motion, it will have only the acceleration named centripetal. Okay, the net resultant force of providing this centripetal acceleration will be called centripetal force. जो भी फोर्स इस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने के लिए यूज होगा, दैट फोर्स विल बी कॉल्ड व्हाट? सेंट्रिपिटल force. It may be any type of force, for example, like tension, friction, normal, spring force, etc. Okay, then or the combination of such forces are also possible. And pseudo force, since this is not actually the force applied, okay, it can only be felt. So the pseudo force never provide the centripetal acceleration. Then we have seen that the summation of all the forces towards the center is nothing but the centripetal force, and the centripetal force will be written as what? Mass of the object into the acceleration of the body, which is centripetal acceleration v square by r. Next we see the centripetal acceleration. We have seen summation of all the forces towards center. M v square by r is nothing but mass into centripetal acceleration, because v square by r is a term which represent what? Centripetal acceleration. It should not be included in FBD. ये वाला जो force है, mass into centripetal acceleration, ये कभी भी ऑब्जेक्ट के फ्री बॉडी डायग्राम में या फोर्स बॉडी डायग्राम में इंक्लूड नहीं करना होता है. ओके, ऑफ मास इन द इनर्शियल फ्रेम. इनर्शियल फ्रेम मींस ऐसा फ्रेम जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या फिर स्टेशनरी है, रेस्ट में. So I will today start with the steps to follow in solving circular motion problems. Put a very small heading: steps to solve the problems. Steps to solve the problems based on circular motion. Only circular motion I will write, because the problem may include non-uniform also circular motion. So first step will be, you have to identify the circle in which the object is performing circular motion. So first step should be identify the circle. Identify the circle and find radius. Identify the circle and find radius in which the particle is performing. In which the particle is performing circular motion. CM I am writing for circular motion. Next, as we are dealing with what? Dynamics. Okay, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पे बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम होंगे, डायनामिक्स बोले तो फोर्स की स्टडी होगी, फोर्स का कैलकुलेशन होगा, और मास को भी अपने को कंसीडर करना पड़ेगा. तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सर्कल को आइडेंटिफाई करके उस सर्कल का रेडियस फाइंड कर लेना. उसके बाद आप क्या करोगे? ड्रॉ करोगे. क्या? ड्रॉ फोर्स बॉडी डायग्राम. We will draw the FBD and we will select an axis and select one axis along the radial direction. Select one axis along the radial direction. Along the radial direction,
and apply न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद आप क्या करोगे, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? force equals to mass into acceleration. Then we will be using that relation here. It means radial direction. What is the radial direction here? In any circular motion, the radial direction will be the direction which is pointing towards what? Center. So along the center, whatever forces will be acting on the body, we will have to write all the forces, and we will have to use those forces in the Newton's second law of motion. It means along the radial direction, that means what? The summation of all the forces which are providing the centripetal force can be written as mass into the centripetal acceleration. You can put the value of centripetal acceleration as what? mv square by r. तो सेकंड स्टेप में आपका क्या होगा कि रेडियल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज हैं, इस पॉइंट को याद रखना, रेडियल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज हैं इन सबको आपको सिलेक्ट करके आपको इन एक्सिस के अलोंग क्या करना है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूटिलाइज करना है। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, अगर उन फोर्सेज के कंपोनेंट किसी और डायरेक्शन में भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो दूसरी एक्सिस को भी आपको आइडेंटिफाई करके यू विल हैव टू अप्लाई अगेन द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अलोंग दैट एक्सिस। सो आई विल राइट द थर्ड स्टेप, सेलेक्ट अनदर सुटेबल एक्सिस। अगर होता है तो सिलेक्ट करेंगे अनदर सुटेबल एक्सिस and apply Newton's second law of motion and apply suitable axis। कोई और भी हो जिधर की जिस डायरेक्शन में की फोर्स एग्जिस्ट कर रहा हो तो उस डायरेक्शन में भी आप क्या करोगे, एंड अप्लाई न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। So these are the steps which we are going to follow to solve these questions based on circular motion, dynamics of circular motion. So let's see the first question. In the first question, I would like to have one circle. Let me have at least only 10 seconds, not more than that. Okay, we have a circle here. And on this circle, suppose this is a track, this is a circular track on which an object of mass m, an object of mass m is moving. This circle is actually, this circle is on a plane. ये सर्कल एक प्लेन में है, ऐसा वर्टिकल नहीं रखा हुआ है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन लिख देता हूं मैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब कि आपके टेबल पे या फिर आपके फर्श पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। सर्कल इज ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इस सर्कल पे क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है m मास का, ये कुछ v वेलोसिटी से घूम रहा है। जैसे कि आप अपने घर में किसी बच्चे के खिलौने की बात करो, छोटा सा ट्रैक बना हुआ था, उस पर कोई भी व्हीकल को आप चलाते हो, तो m मास है इसका, v इसकी क्या है, वेलोसिटी है। तो इस वेलोसिटी के कोरेस्पॉन्डिंग इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा इसके नॉर्मल डायरेक्शन में, है ना, इस नॉर्मल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। अब मान लो, या फिर ऐसा करूं मैं, एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। अभी क्या करते हैं, जो ब्लॉक है, ये छोटा सा जो ऑब्जेक्ट है इस सर्कल पे, इसको मैं किसी एक स्ट्रिंग से बांध देता हूं सेंटर पे। ओके, ये कोई मासलेस स्ट्रिंग है। दिस स्ट्रिंग आई एम टेकिंग अ मासलेस स्ट्रिंग, massless string, और मैं इसको घुमा रहा हूं कुछ v वेलोसिटी। अब आपको मैं एक पुराने बिछड़े हुए पॉइंट पे लेके चलता हूं। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, सेंट्रिपिटल फोर्स को प्रोवाइड करने वाले कौन कौन हो सकते हैं, टेंशन हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है,
ओके, स्प्रिंग के फोर्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस हो सकते हैं। अभी इस ब्लॉक को सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने वाला फोर्स कौन है? एनीबडी, प्लीज मैसेज, प्लीज टेक्स्ट मी दैट what type of force is there involved in providing the centripetal acceleration? Just tell me. Anybody, you can text me here. The tension in the string, okay? The tension. Very good, Ayush. Awesome, awesome. So the tension in the string here will provide the centripetal acceleration. And this tension will be responsible for this object of mass m to stay on this circular track. समझना बातों को ध्यान से, ये टेंशन ही इस ब्लॉक को इस सर्कुलर पाथ में रिटेन करके रख सकता है। मान लो मैं स्ट्रिंग को कट कर दूं, तब तो ये बाहर निकल जाएगा सर्कल से, है ना। तो यहाँ जो सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड किया जाएगा इस ब्लॉक को, मान लो अभी मैं ब्लॉक ऐसा घूम रहा है तो यहाँ भी तो पहुंचा होगा कभी, तो मैं इसको इसी पॉइंट पे मान के इसका अगर यदि एफ बी डी बनाऊं, सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे एक सर्कल आइडेंटिफाई कर लिया। मान लो इस स्ट्रिंग का लेंथ एल है, सबसे पहले आपने सर्कल आइडेंटिफाई किया और रेडियस फाइंड कर लिया सर्कल का, तो एल है रेडियस जो कि आपको दिख रहा है। अब आप क्या करोगे, इसमें इसका एफ बी डी बनाओगे इस ब्लॉक का। मैं इसका एफ बी डी बनाता हूं तो मुझे एक टेंशन दिखेगा जो कि किधर को होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस ब्लॉक, और ब्लॉक सरफेस पे रखा हुआ है तो इसका ऊपर की डायरेक्शन में एक नॉर्मल एक्ट करेगा और नीचे के डायरेक्शन में एक mg एक्ट करेगा। अब जैसा कि आपको नॉर्मल का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि नॉर्मल या तो जीरो होता है या तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता है। यहाँ पे नॉर्मल क्या है, ऑब्जेक्ट तो सरफेस पे ही रखा हुआ रह रहा है ना, सरफेस को तो छोड़ के बाहर नहीं निकल रहा है। तो ऑब्जेक्ट अगर सरफेस के टच में है, इट मीन्स नॉर्मल किसके इक्वल है, mg, क्योंकि जिस सरफेस पे आपने रखा है जिस सरफेस पे आप इसको रोटेट कर रहे हो वो सरफेस तो स्टेशनरी है, इसका मतलब नॉर्मल इक्वल्स टू mg। इस डायरेक्शन के फोर्स से तो हमें कोई मतलब है। इसको सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो टेंशन किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सेंटर। आपको पता है कि इस AC को FBD पे शो नहीं करना है। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी कितनी, mass of the block multiplied with this centripetal acceleration, and one more equation in the y direction you will get n equals to mg, जिसका कि अभी यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है। अब इस एक्सेलरेशन की बात करो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, it is the velocity at that instant divided by the radius of the circle, this is the second point। तो यहाँ से आप टेंशन फाइंड कर सकते हो। अगर वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड दे दिया जाए और रेडियस दे दिया गया मान लो 1 मीटर और मास दे दिया 1 किलोग्राम, तो क्या आप टेंशन बता सकते हो? यस ऑब्वियसली, मास इज 1, 5 स्क्वायर मतलब 25 न्यूटन आ जाएगा फिर टेंशन की वैल्यू। ऐसे एक बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जा सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। I will give you the time for this question to solve. Okay, for each question I will be giving you only 1 minute, so you'll have to be a bit faster. If I show you, I will take this circle first. Let me take this circle, and I will be making a very good diagram here. One second. Good morning, ma'am. Yeah, I know that, ma'am. Yesterday, okay, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक सर्कल है, प्लीज डोंट टेक्स्ट नाउ। यहाँ से किसी L1 डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास m1, और इस m1 से
L2 डिस्टेंस पे मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेता हूँ, अच्छा लगेगा डायग्राम देख करके। अब इस M1 से फर्दर L2 डिस्टेंस पे एक और मास कनेक्टेड है M2, ये L2 डिस्टेंस। एक्चुअली ये स्ट्रिंग है, दिस इज एन स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग से ये वाला मास M2 कनेक्ट, और इनको ओमेगा दे दिया। ये कनेक्टेड मास है, दोनों के दोनों कनेक्टेड है। और यहाँ पे आप स्ट्रिंग को मासलेस कंसीडर कर लेना। स्ट्रिंग को आप क्या कंसीडर करोगे? मासलेस। ओके, तो यहाँ जो फर्स्ट सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग है, इसमें मैं आपको बता दूं कि टेंशन T1 है और इसमें टेंशन T2 है, और इनको मैंने ओमेगा दे दिया गया है। ओमेगा इज गिवन, L1 and L2 is given. You have to find the tension. This is, these motions are happening on horizontal plane, in horizontal plane. This is happening on an horizontal plane. You have to find the tension T1 and T2. I'll give you 1.5 minutes. Please answer this question.